And today's topic is about helping you run your business effectively through this market research and through innovation. Ajay ji, I think lot of people heard what Ajay ji has been and is, but I would still like to introduce because I wouldn't miss this opportunity for anything. So my pleasure to introduce today's speaker, Ajay Jain. He has been an international trainer of the Indian Junior Chamber from 1993 onwards. He is a strategic executioner mentor, and he runs a masterclass specifically for this. A social media and a digital marketing enthusiast, as well as running so many sessions to help people gain and make the most from these mediums. He has been into corporate insurance and a Jito CEO for 4 consecutive years. He started this first multi-corner barter exchange in India, which is a one of its type barter solutions, where I have personally experienced this, and I must say people should join this. So without taking much time and not keeping you away from this session, I will be handing it over to Ajay ji. Just one quick small thing as a tip. Like it has been mentioned, this is an interactive session. So your questions, please use the chat box. Please put your questions so we can put them across to Ajay ji and help you all gain most of this session. So over to you, Ajay ji. Thank you so much, Ruti ji. I must thank Jain madam, Surekha madam, Trupti madam, and Kirti bhai to call me for this session. And if you can see, this is my passion to train people, and this has been developed after my junior chamber training of becoming a trainer. So we are going to discuss about market research and innovation. So first of all, let us understand one thing. It is not a great technical word. And we are not going to treat market research as something very big or something that will come in the flow. But before we go any further, we must know what is business. English is okay for everybody, or I should be in Hindi also? सर थोड़ा मिक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा. हाँ, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मेरी इंग्लिश सुधर जाएगी. हाँ. So the question is, we are going to talk about business, and all of us are going to do business. Now I want to know from the participant, कहीं से आवाज आ रही है? What is business? What is definition of business according to you? Yes, friends, please use the chat box. What do you think? Chat box में मुश्किल होएगा, आप बोलने को बोलिए, because I will not be able to see chat box so much. No problem, sir. हम दोनों करवाएंगे. So, what is business according to you? You can raise your hand and we can unmute you. Okay, हाँ. सर किसी को नहीं पता बिजनेस क्या है. तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं कोशिश करती हूँ. हाँ, करिए. Don't bother. Whatever you say is your perspective, yes. And that is okay. Okay. So एक आंसर हमें ऑलरेडी आया, वो है पैशन कन्वर्टेड इनटू पेचेक. Okay. Okay, it is a trade between two people, is what Ruchita ji says. Okay. Purva is saying it is all about making profits. Okay. According to me, business is helping and solving a problem which is there, and then making money out of it. That is my definition. Ria says being capable of anything by our own self. Okay. It can be something which can create income. It can be an income source. Okay. So everybody is Vivin Sachin has raised hand. ठीक है, उनको अनम्यूट के लिए बोला है. Vivan ji, हाँ, please go ahead. Actually, ma'am, business is using your sense in the market to present you and your capability, potential, and work out from there to help the people and make money out of your sense. Okay.
Thank you so much. So I think Okay, yeah, okay. Yes. So my making money with self-satisfaction of doing good. Good. Punita ji. Now, whenever I start something new or I start training or somebody, I start with the basic. Because if the basic is stronger, every foundation becomes a base for becoming very big. And you heard I am associated with company called Masterclass, and Masterclass, Mr. Ambrish Chheda, who is the chairman, has done a wide research and is created a definition which according to me will not be available in Google and which is comprehensive by itself. So what we will do, we will see the definition of the business. From that, everything will flow. Even your thought process will flow. So 1 minute, I will just share the screen with you. Oh, this is a trailer, don't worry. मेरा ये मिस्टेक हो गया, इसको पहले रखना चाहिए था स्लाइड को, ठीक है. सर वैसे भी है ना, बहुत याद नहीं रहने वाला है इतने नहीं, आपको याद रहेगा, वो मेरी गारंटी है. तो बिजनेस हाँ, ओके. तो बिजनेस डेफिनेशन, पहले मैं बिजनेस डेफिनेशन पूरा पढ़ता हूं और फिर अपन उसको पार्ट वाइज अंडरस्टैंड करेंगे. So business is the process of creating substantial value for your customers, for industry, society, nation, and the world. Now you can decide which level you want to go, whichever this level you can think of, by utilizing as minimum resources as possible, so that a portion of difference between value created and resources utilized will come back to you as profit. तो सबसे पहले बिजनेस इज अ प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब है पद्धति, और प्रोसेस का होने का मतलब है इट विल रन विदाउट यू ऑल्सो. तो आपने मैकडोनल्ड देखा होगा, मैकडोनल्ड के 30,000 रेस्टोरेंट रन परफेक्टली, गिविंग द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस. हम लोग खुद ही काम करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, उसको बिजनेस नहीं बोलते हैं, उसको बिजीनेस बोलते हैं. तो अगर बिजनेस करना है तो पहले बिजनेस का प्रोसेस होना चाहिए. तो कोई भी काम करने का एक पद्धति होना चाहिए, पद्धति डिफाइन होना चाहिए, जिससे फायदा ये होगा कि आपके नीचे के लोग, आपकी टीम मेंबर आपके हिसाब से काम कर पाएंगे. नाउ प्रोसेस फॉर व्हाट? प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग सब्सटेंशियल वैल्यू. छोटा मोटा वैल्यू नहीं. मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बिजनेस में अगर बिजनेस आपको बढ़ाना है, सक्सेसफुल होना है, तो छोटे मोटे वैल्यू के बारे में मत सोचिए. थिंक ऑफ क्रिएटिंग सब्सटेंशियल वैल्यू. किसके लिए? तो सबसे पहला तो अपने कस्टमर के लिए. अगर आप कस्टमर को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर पाए तो देन यू हैव टू डू समथिंग बाय विच योर इंडस्ट्री बेनिफिट बिकॉज ऑफ यू. तो आपने बिजनेस इस तरह से करना है कि कस्टमर को भी फायदा हो और कस्टमर के साथ के आपके इंडस्ट्री में फायदा हो. तो कुछ कंपनियों ने आपने देखा होगा, उनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बढ़ गई. जैसे कैडबरी चॉकलेट की वजह से पूरा चॉकलेट इंडस्ट्री बढ़ गया. तो डूइंग समथिंग बाय विच द होल इंडस्ट्री ग्रोथ. और आपकी सोसाइटी को भी फायदा होना चाहिए. और अभी तो मैं हर कंपनी को बोलता हूं कि व्हेनेवर यू आर प्लानिंग योर बिजनेस प्लान, उसमें एक सोसाइटी को बेनिफिट कैसे होगा वो एंगल भी डाल दीजिए. जैसे लिज्जत पापड़ का एंगल है कि हेल्पिंग हाउसवाइफ टू अर्न मोर मनी. देन वॉट एवर यू डू, बिजनेस यू डू, इट शुड हेल्प योर नेशन. तो देर आर कंपनी लाइक TCS, Infosys, they are helping the nation also.
and there are company which are benefiting or giving substantial value to the whole world. उसके नाम में अगर लूँ तो गूगल, फेसबुक वगैरह सब आते हैं. नाउ आपको कस्टमर लेवल पे काम करना है, इंडस्ट्री के काम करना है, सोसाइटी लेवल पे करना है, इट इज योर चॉइस. अभी चैलेंज ये है कि यू हैव टू क्रिएट सब्सटेंशियल वैल्यू. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा. यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि यू हैव टू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन मिनिमम होना चाहिए. जितना मिनिमम हो सके उतना होना चाहिए. तो वैल्यू ज्यादा क्रिएट करना है और रिसोर्सेज कम यूटिलाइज करना है. दिस इज द चैलेंज. तो रिसोर्सेज कम करना है, एक तो प्रॉफिट के लिए, दूसरा रिसोर्सेज कम यूज करना है क्योंकि द अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, तो वी कैन नॉट गो एंड कंज्यूम एवरीथिंग. तो यूटिलाइजिंग एज मिनिमम रिसोर्सेज एज पॉसिबल. अच्छा, दूसरा लोगों को मन में ये होता है कि मैंने इतना वैल्यू क्रिएट किया, ये सब मेरा हो गया. तो आपने जो वैल्यू क्रिएट किया वो आपका नहीं हुआ. आपने जो वैल्यू क्रिएट किया माइनस यूटिलाइज रिसोर्सेज यूटिलाइज, उसका आपको पोर्शन मिलेगा. तो अगर आपने 100 रुपए का वैल्यू क्रिएट किया और 50 रुपीज का उसमें कॉस्ट हुआ, तो 50 रुपीज बचा. ये 50 आपका नहीं है, आपका 5, 7, 8 इतना ही है. तो हमने इसमें देखा कि इट्स अ प्रोसेस क्रिएटिंग सब्सटेंशियल वैल्यू. अभी सब्सटेंशियल वैल्यू क्रिएट करना यही बिजनेस का मॉडल है. तो मार्केट रिसर्च इनोवेशन इज नथिंग बट क्रिएटिंग दिस सब्सटेंशियल वैल्यू. अब इसमें है कि रिसोर्सेज मिनिमम करना है यूज. तो रिसोर्सेज मिनिमम यूज करने के लिए हमको सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो यूज करना पड़ेगा. और सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा अपना माइंड, हमारा थिंकिंग, हमारा इमेजिनेशन प्रोसेस. तो यू कैन क्रिएट सब्सटेंशियल वैल्यू बाय यूटिलाइजिंग योर माइंड. और माइंड का कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है. तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस डेफिनेशन? Or anybody want to comment on this definition? ये तो मेरे को शोले पिक्चर का डायलॉग बोलना पड़ेगा. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? No, sir, you can proceed. There is no question, see. But anybody's comment, how you like the definition? Yeah, very precise and to the means you can relate it easily. Yeah. Okay. So we will go and see the best definition given by Mr. Napoleon Hill, जिसकी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच. उसका सिंपल बिजनेस फॉर्मूला है फाइंड एंड नीड, फिल इट. What is business? You have to find a need, what is needed, and you have to fill it. So we will elaborate on this. Find a need, fill it. Now everybody is challenged कि मुझे बिजनेस करना है, क्या करूं, नहीं करूं, कैसा करूं. जनरली हम लोग देखते हैं कि स्कोप किस में है, तो जिसमें स्कोप है उसमें घुस जाते हैं और उसमें आपको मालूम पड़ता है इट इज क्राउडेड. तो जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज के थोड़े दिन के बाद की बात है, 80s में सब लोग कंप्यूटर कोर्स करते थे. जो देखा वो कंप्यूटर कोर्स कर रहा है. बाद में वो बोलता था करने के बाद कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. तो आज की तारीख में एक बात समझ लीजिए, there is scope for every hobby, every skill, every quality. Because of technology, because of so many development, today anybody can do wonder with whatever skill he has. आपको मालूम है एक आदमी सिर्फ आपको अंताक्षरी खिलाता है, नाम मालूम है आपको? प्रोफेशनली अंताक्षरी खिलाता है और वो एक रात का प्रोग्राम कंडक्ट करने का
9.5 लाख रुपया लेता है। काम क्या है? अंताक्षरी खिलवाना। प्राइस कितना? 9.5 लाख रुपए। तो आपकी आज की तारीख में आपका कोई भी स्किल है, आपका कोई भी स्पेशल टैलेंट है, दैट कैन बिकम योर बिजनेस। सो मार्केट रिसर्च को थोड़ा बाजू में रखें, स्कोप किस में है उसको बाजू में रखें, और मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्या अच्छा लगता है, उस पर ध्यान दें। बिकॉज इफ यू डू व्हाट यू लाइक, इट इज अ प्ले, इट इज नॉट ए वर्क, देन यू विल एंजॉय मोर। तो पहला तो ये कि स्कोप मत देखिए, मेरा पर्पस किधर है और मेरा पैशन क्या है वो देखिए। सेकंड, जो चीज आपको लाइफ में प्रॉब्लम दे रही है वही चीज और भी लोगों को प्रॉब्लम दे रही होगी। तो बिजनेस में स्कोप ढूंढने की जगह, कौन से बिजनेस में स्कोप है वो ढूंढने की जगह पर कौन से एरिया में प्रॉब्लम ज्यादा है और कौन सी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, आपका बिजनेस चल जाएगा। तो इफ यू कैन सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, योर बिजनेस विल ग्रो। नाउ मार्केट रिसर्च 50 आदमी को पूछो, 100 आदमी को पूछो, 200 आदमी को पूछो, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको आइडिया मिल जाएगा जो आपको चाहिए, बिकॉज द मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। स्टीव जॉब के हिसाब से व्हाट ही सेज, द कस्टमर डोंट नो व्हाट ही वांट्स, वी विल गिव कस्टमर व्हाट ही वांट्स। तो इवन ए वन मैन आइडिया कैन क्रिएट वंडर्स। तो अगर आपने एक कंपनी देखा होगा, उसका नाम सुना होगा, बजाज अलायंस। तो लोन देने वाली बहुत सारी कंपनियां मार्केट में थी, और बजाज अलायंस आई थिंक 10-12 साल के ऊपर नहीं हुई है, लेकिन आज नंबर 1 कंपनी इन द कंट्री। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लोन करने के लिए 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगते थे, उसको मिनटों में लेके आए। यानी 2 मिनट में, 3 मिनट में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस किया। तो उसने क्या किया? खाली लोन के प्रोसेस को छोटा किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई नया ही बिजनेस ढूंढना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई पेन पॉइंट है उसको निकालना है। तो लोन लेने के बिजनेस में यह था कि लोन लेने के लिए 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगते थे। बजाज अलायंस ने वो एरिया में काम किया और उसको 2-3 मिनट में लेके आए। तो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, उसके अलग अलग स्टेप्स को देखिए, और उसमें आप देखिए कि कहाँ पे कस्टमर को ज्यादा प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर देंगे तो भी आपका कोई भी बिजनेस चलेगा, नॉर्मल बिजनेस भी चलेगा। दूसरा यह है कि जिस जगह पे खिटखिट है, जिस जगह पे तकलीफ है, और जो इंडस्ट्री ने सोच लिया कि हमारे लाइन में तो ऐसा ही होता है, उसको चैलेंज करने में ही आपका बिजनेस है। तो आज के इरा में एनी बिजनेस कैन बिकम ए ग्रेट बिजनेस, प्रोवाइडेड यू आर गिविंग सब्सटेंशियल वैल्यू। सब्सटेंशियल वैल्यू कैसे देना? उसके लिए सबसे बड़ा है कि आप ही खुद अपने पे एक्सपेरिमेंट करो कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम लाइफ में आ रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन निकालो। जोमेटो ने क्या किया? वही किया कि आपको अपने घर में बैठ के, पहले रेस्टोरेंट में से कुछ मंगाते थे तो 200 रुपया, 500 रुपए का मंगाना पड़ता था। आज वो एक सिंगल गुलाब जामुन भी दे रहा है। हालांकि कस्टमर ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि रेस्टोरेंट वाला इसके बिना कैसे करेगा, ईस्ट वाला होटल वेस्ट में कैसे सप्लाई करेगा, लेकिन जोमेटो ने उसको चैलेंज किया और वो कर लिया। तो मार्केट रिसर्च का मेरा सिंपल फॉर्मूला है कि आप अपने आसपास और अपने एरिया में देखो कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, और आप उसका सॉल्यूशन लेके आओ, वही आपका बिजनेस है। दूसरा, मार्केट रिसर्च से अच्छा है कि आप जब भी बिजनेस करने जाए, काम शुरू करने के पहले कोई अच्छा कोच या मेंटर साथ में रख ले, क्योंकि जो जर्नी आप करने वाले हैं, जिस बिजनेस की राह पे आप चलने वाले हैं, जो मंजिलों पे आप चलने वाले हैं, वो पहले चल चुका है, उसे पूरा अनुभव है।
तो मेरा एक बहुत अच्छा सेइंग है कि अगर आपको लंका जीतना है तो आपको विभीषण को दोस्त बनाना पड़ेगा। तो हर एरिया में एक विभीषण अवेलेबल है, आपको विभीषण ढूंढना है और उसको साथ में लेना है। तो एक मेंटर और कोच आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। आज की तारीख में वैसे बिजनेस सिंपल भी है और बिजनेस कठिन भी है। एनीबडी विथ एनी आइडिया कैन बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस, बट कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बातों के लिए आपको द बेस्ट थिंग इज टू हैव अ मेंटर विथ यू। कोई भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम लगता है जिसका सॉल्यूशन आप लाना चाहते हो। एक दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जब सब अच्छा होगा तब लॉन्च करूंगा, तो सब अच्छा होगा वो कब होगा मालूम नहीं। और ये जो इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो परफेक्शन कुछ होता नहीं है। वी हैव टू एम फॉर परफेक्शन, लेकिन परफेक्ट हो गया ऐसा हम कभी बोल नहीं सकते हैं। तो ज्यादा सोचने के बजाय जो काम चालू करना है वो चालू कर दो। मैंने बहुत लोगों से बात की है, बहुत लोग के बिजनेसमैन के इंटरव्यू लिए हैं। तो किसी का समझो 15 साल पुराना बिजनेस है, जब हम उसको पूछते हैं कि आपने ये बिजनेस को पहले पूरा डिजाइन और पहले माइंड में देखा था, तो बोला नहीं, मेरे को जो अवेलेबल था जैसा मालूम था वैसे मैंने शुरू किया और धीरे धीरे मैं सीखता गया और आज पोजीशन पे आया। तो और एक एग्जांपल है कि अगर आप रात को पुणे से मुंबई आ रहे हैं तो सिटी लिमिट के बाद में लाइट खत्म हो जाती है, फिर आपको अपनी हेडलाइट चालू करके चलना पड़ता है। हेडलाइट से आपको 25 फुट 50 फुट का ही दिखता है, उसके आगे नहीं दिखता है। बॉम्बे तो 200 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, फिर भी आप आ जाते हो क्योंकि वो 15 फुट 20 फुट 25 फुट आपको आगे 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 रास्ता दिखाता रहता है। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी काम शुरू करना है आप उसमें परफेक्शन मत देखें, जितना हो सके उतना करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। बहुत सारी चीजें स्टार्ट करने के बाद पता चलती है कि क्या है। बहुत सारे नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज काम करते करते आती है। तो पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो आपका जो भी आइडिया लगा, आपको जो अच्छा लगा, सबसे बढ़िया फॉर्मूला मेरा लाइफ का है कि अगर कोई बिजनेस आइडिया आपको एनर्जेटिक कर देती है और आपको रात को सोने नहीं दे रही है, वो अच्छा बिजनेस है आपके लिए। ये आप अपने आप ही अनुभव कर सकते हो। तो द थिंग विच एक्साइट्स यू, द थिंग विच यू मेक्स यू एनर्जेटिक, उस काम को आप कर सकते हो। वो काम स्टार्ट करिए। मेंटर्स, कोचेस और लोगों का राय लीजिए। वो जो भी बोले उनका पर्सपेक्टिव है उसको सुन लीजिए और उसके हिसाब से अपने बिजनेस प्लान में आप अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहिए। कभी कभी कोई आदमी बात बोलेगा वो कुछ काम की नहीं है, तो सुन के बाजू रख देने का, एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। तो स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट लिटिल एंड देन स्लोली ग्रो। परफेक्शन के लिए मत जाना, जब सब हो जाएगा तब चालू करूंगी, तो वैसा दिन कभी होता नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोकास्टिनेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जब सब ठीक होगा तब करूंगा। अभी सुरेखा जी और मैं, हम लोग मैरिड हैं, और मैरिज करने के पहले अगर मैरिज के प्रॉब्लम के बारे में सोचा होता तो हमने मैरिज ही नहीं किया होता। तो शुरू करिए, रास्ते आपको मिलते जाएंगे, लोग आपको मिलते जाएंगे, नॉलेज आपको मिलते जाएगा। खाली आपको अपॉर्चुनिटी के लिए अलर्ट रहना है, सेंसिटिव रहना है और कॉन्शियस रहना है। आज की तारीख में गूगल अंकल जो गूगल पे है, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है। यहां तक कि तृप्ति जी, आप अपना नाम भी डालेंगे ना तो आपका भी गूगल पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सुरेखा जी, आप भी अपना नाम डालेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। कभी आप गूगल पे ट्राई कर लेना। मैंने बहुत लोग से करवाया, उनको मजा आ गया देख के, अरे इतना सब मेरे बारे में यहाँ लिखा हुआ है, भले आपने नहीं डाला है। तो गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। आप अपनी रिसर्च करिए और अपना आइडिया लीजिए और एक प्रोसेस स्टार्ट करिए। कोई भी कंपनी जो आज इतनी बड़ी है, उसने पहले दिन नहीं सोचा था कि मैं क्या करूंगा। तो जब उसने काम शुरू किया, उसको रास्ता मिलते गया, वो आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। तो पहले बिजनेस
एक मेरे ख्याल से 20-25 साल, 25 साल नहीं, 80s में ये बिजनेस को बोला गया बिजनेस इज मार्केटिंग। तो बिजनेस क्या है? मार्केटिंग है। और फिर सब मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो गए, सबको फिलिप कॉटलर ने सिखा दिया, सब फिलिप कॉटलर के गुरु बन गए। तो मार्केटिंग अभी सबके पास हो गया। तो जैसे आपने देखा होगा मिस इंडिया में 40 लड़कियां होती है, 40 की 40 खूबसूरत दिखती है, तो फिर अच्छा कौन है? वैसे ही हर कंपनी मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। तो आपको डिफरेंशिएट कौन करवाएगा? तो आपको डिफरेंशिएट करवाएगा इनोवेशन। तो कोई भी फील्ड में, कोई भी एरिया में अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो आपको इनोवेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इनोवेशन सिखाने वाले लोग आपको 5 घंटा 8 घंटा टेक्निकल टर्म में ले जाएंगे। मैंने उसका एक सिंपल फॉर्मूला बनाया है कि इनोवेशन करने वाले लोगों के गुण क्या होते हैं, वो अपने में होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ इनोवेटिव लीडर अगर हमारे में आ गए तो हम इनोवेशन कर पाएंगे। और मैं अभी कितना बजा है मैडम? 5:45 हुआ है, तो अपना 6:30 तक है ना? Yes, yes, sir. तो आई विल, हाँ 6:15 तक है सर। नहीं 6:15 को मुझे बंद करना है, क्वेश्चन आंसर के बाद में कि पहले? सर 6:50 मतलब वी कैन टेक द Q&A for 6:15। 5:15 तक ना? 6:15 सर। 6:15 है, 6:15 तक, आधा घंटा है अपने पास। तो वी विल कवर सम टॉपिक्स ऑफ इनोवेशन। वैसे तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्वालिटी ऑफ एन इनोवेटिव लीडर। तो जैसे मैंने कहा था कि पीटर ड्रकर ने बोला है, पीटर ड्रकर इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑथर, यू मस्ट रीड हिज बुक। उसकी पहली बुक आई थी इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस, और उसकी लास्ट बुक है रीइमेजिन। रीइमेजिन इज अ वंडरफुल बुक। तो बिजनेस इज मार्केटिंग एंड इनोवेशन, रेस्ट एवरीथिंग इज कॉस्ट। तो पीटर ड्रकर ने इनोवेशन को मार्केटिंग का दर्जा दिया है, और मैं बोलता हूं मार्केटिंग से भी ज्यादा इनोवेशन इज मोर पावरफुल। व्हाट इज इनोवेशन? कोई नया आइडिया ले आना, कोई नया मेथड ले आना, कोई चेंज करना, कोई चीज को रिन्यू करना। अभी मैंने बहुत बार देखा है, एक आदमी उडुपी रेस्टोरेंट में जाता है, उडुपी यानी जहां पे साउथ इंडियन फूड मिलता है, वो पूरा मेनू कार्ड मंगाता है, 5 मिनट देखता है, फिर आजू बाजू में लोग क्या खा रहे हैं वो देखता है, फिर बोलता है एक इडली सांभर। यानी हम हमारे लाइफ में भी कुछ चेंज नहीं चाहते हैं। तो सबसे बड़ा है कि आपको अपने आप में चेंजेस करना है। अभी आप लेडीज हैं तो आप खाने में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, नई नई आइटम बना सकते हैं, नई नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, और हर चीज को नया करने का कोशिश करिए। सेकंड, अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आप नोकिया फोन हो जाएंगे, जिसको आज कोई नहीं चाहता है। तो यू टू कंस्टेंटली कीप इनोवेटिंग। अगर इनोवेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना है तो आप अमिताभ बच्चन की पूरी हिस्ट्री देख लो, उसने कब चालू किया था और वो आज क्या क्या कर रहा है, वो हर चीज कर रहा है। तो इफ यू डोंट इनोवेट यू विल गेट एक्सटिंक्ट, और आप नोकिया फोन हो जाओगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। इनोवेशन कैसा होना चाहिए? इनोवेशन रिलेवेंट होना चाहिए। जो प्रॉब्लम के बारे में आप काम कर रहे हो उसको रिलेवेंट होना चाहिए, जिसके लिए, जिस ऑडियंस के लिए कर रहे हो उसको रिलेवेंट होना चाहिए। तो इनोवेशन कितना भी करो, खाली इनोवेशन के लिए इनोवेशन नहीं करना है, खाली इनोवेशन करने के लिए लाइफ में चेंज नहीं करना है, वो उस काम के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ इनोवेशन इज जस्ट टू बी रिलेवेंट। दूसरा है वो इनोवेशन प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर वो इनोवेशन से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो उसका कुछ इनोवेशन का कोई मतलब
नहीं है, फिर नाम का इनोवेशन है। तो रिलेवेंट होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन के लिए, नहीं तो हम इनोवेशन के लिए कुछ भी नया नया खतरा करते रहते हैं। इनोवेशन करने से आपके काम करने की स्पीड बननी चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और अगर आप बिजनेस में आना चाहते हो तो सबसे बड़ा वैल्यू जो आपको सीखना है, आपको स्पीड में काम करना है, क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट आगे बढ़ रही है कि अगर आप कोई काम करने को 25 दिन 1 महीना लगाते हो तो दूसरा कोई कॉपी कर लेता है। सो इन दिस एज द हाईएस्ट वैल्यू इज फास्टर एंड स्पीड। उसकी वजह से खर्चा कम होना चाहिए। इनोवेशन करने से क्या होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए। और हमारे बिजनेस डेफिनेशन में भी था कि एज मिनिमम रिसोर्सेज एज पॉसिबल। सबसे बड़ी बात, इनोवेशन शुड बी इजी टू डू इट, एंड ऑल ग्रेट थिंग्स आर सिंपल एंड इजी। सिंपल भी आ गया। तो मैंने ये प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आप इनोवेटिव लीडर के क्वालिटीज समझ लोगे और अपने आप में वो चेंजेस ले आओगे तो आप इनोवेटिव बन सकते हैं। यहां पे लीडर लिखा है, इसका मतलब है इनोवेटिव लीडर। सो वेरेवर देयर इज अ लीडर, इट इज इनोवेटिव लीडर। लीडर क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। तो इनोवेटिव लीडर का काम क्या है, हर जगह अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। पहली बात समझ लो, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, देखने वाले की नजर में है। इस पे बहुत एग्जांपल है लेकिन अपने पास टाइम नहीं है तो मैं खाली ब्रीफ में बता रहा हूं। जो आदमी अपॉर्चुनिटी देखता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। तो जो नासा का रॉकेट ऊपर जा रहा है उसको भी स्पॉन्सर करवा दिया। और एक मैं बात यहां बताने जाता हूं कि बिजनेसमैन बिजनेस क्या करते, तो हमने स्कूल में डेफिनेशन पढ़ा था 4M, मनी, मैन, मटेरियल, मशीनरी। ये रिसोर्सेज है। तो बिजनेस इज मैनेजिंग रिसोर्सेज। तो स्कूल का डेफिनेशन था बिजनेसिंग मैनेजिंग रिसोर्सेज। तो इसके लिए जो आदमी मैनेज कर रहा है उसको रिसोर्सफुल बनना बहुत जरूरी है। तो एज ए बिजनेसमैन आई हैव टू बी रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब है कहीं अटकना नहीं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेना। अभी मुझे बहुत लोग के फोन आते हैं, तरह तरह की इंफॉर्मेशन पूछते हैं। मैं गूगल में देख के उसको बता लेता हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन कोई पूछता है मैं गूगल में से उसको बता देता हूँ। उसको लगता है मैं जीनियस हूं, मैं जीनियस नहीं हूं, गूगल अवेलेबल है। तो एज ए बिजनेसमैन टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी ऑलवेज रिसोर्सफुल। कहीं भी अटकने का नहीं, रास्ता निकाल लेने का। एक्चुअली लाइफ में यू आर रिसोर्सफुल, यू विल क्रिएट ए गुड लाइफ फॉर योरसेल्फ। दूसरा जो है लीडर का क्वालिटी की, ही विल एडमिट आई डोंट नो। अगर आपको नहीं मालूम है आप बोलो मुझे नहीं मालूम है। मालूम है बोलोगे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, नहीं मालूम है तो खोज शुरू हो जाएगी। इसमें और एक मैं आपको सिखाता हूं कि जजमेंट जो प्रोसेस है, जजमेंट किसी भी चीज को जज करना, वो जज का काम है या ऊपर वाले का काम है, आपका मेरा काम नहीं है। क्योंकि जब भी हम जज करते हैं तो हम आगे देखना बंद कर देते हैं। हम बोलते हैं ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है, ये काम का नहीं है, ये काम का है। ये जजमेंट है। ये जजमेंट लैंग्वेज विल स्टॉप योर थिंकिंग। तो आप बोलो आई डोंट नो। तो मैंने बहुत पहले जब ट्रेनिंग का काम शुरू किया था तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था। तो मैं कोई भी इंग्लिश वर्ड लेता था तो उसका डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ के वगैरह तैयारी करता था। तो ये आई डोंट नो हैज हेल्प मी टू लर्न लॉट ऑफ थिंग। और मेरे प्रेजेंटेशन में जब भी मैं देखता हूँ कि कोई डिफिकल्ट वर्ड है मैं उसका डिक्शनरी मीनिंग डाल देता हूँ। तो जब आप आई डोंट नो बोलेंगे तो आप और रिसर्च करेंगे, आप और डीप में जाएंगे। तो इनोवेशन करने के लिए ये जरूरी है कि मुझे मालूम है वो मालूम है लेकिन मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम है। और अगर आप नहीं मालूम है बोलोगे तो पहले ऐसा लगता था कि लीडर का मतलब है उसको सब मालूम है, लेकिन आज ऐसा नहीं है।
आई डोंट नो का मतलब है यू आर विलिंग टू गिव कंट्रोल टू अदर, एंड व्हेन यू से आई डोंट नो यू गेट ऑल द आंसर। तो आंसर लिखने मिलने के लिए क्या बोल रहे हैं? आई डोंट नो। आप एक सिंपल भी लिखोगे ना कि हलवा बनाने की रेसिपी मुझे मालूम नहीं है, आपको 50 लोग 50 रेसिपी भेजेंगे। तीसरा है कि innovative person is always looking for talent and he is a full-time talent developer. What is talent? It is visible, emotional, distinct and inspiring. तो आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवी देखी होगी जहां पे कोई मिशन के लिए वो 10-12 लोग की टीम जमा करता है और 10-12 आदमी प्रैक्टिकली वियर्ड यानी पागल जैसे होते हैं, लेकिन वो काम कर जाते हैं। तो वो उसमें क्या दिखता है? टैलेंट। टैलेंट दिखता है। लीडर्स आर विजनरी, वो आगे का देख सकता है, आगे का पिक्चर बना सकता है। और मैं इस फॉर्मूला में विश्वास नहीं करता हूं कि पहले 5 साल नुकसान होगा फिर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आप जो भी बिजनेस कर रहे हो पहले दिन से होना चाहिए। तो बिजनेस में प्रॉफिट लाना इज नथिंग बट मोर थिंकिंग। तो मुझे कोई बिजनेस ऐसा समझ में नहीं आता है जिसमें कैश सरप्लस पहले दिन से नहीं हो। बेसिक इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन प्रॉफिट पहले दिन से आना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा पेजर इंडस्ट्री आई थी, पेजर, आपको मोबाइल के पहले पेजर आया था। उन्होंने बोला कि हमको 2 साल तो लॉस होएगा, बाद में प्रॉफिट होएगा। 2 साल के बाद में मोबाइल आ गया, पेजर को कोई पूछता ही नहीं था। सो इन टूडेज वर्ल्ड प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। सो वॉट एवर यू डू देयर हैज टू बी प्रॉफिट फ्रॉम द डे वन। तीसरा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग। तो आप जो काम करने जाएंगे वो सफल होगा नहीं होगा मालूम नहीं। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग बिसाइड यू। तो जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। अच्छा, हर आदमी को एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं ये काम करूंगा तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन आपके सोचने से रिजल्ट नहीं आएगा, आपके करने से नहीं आएगा। जो काम वाकई में करना है उससे आएगा। तो अगर कोई काम आपने किया और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको डिप्रेस नहीं होना है और आपको उसमें से सीख के आपको वापस आगे बढ़ना है। ये एक बहुत समझने वाली चीज है। पैराडॉक्स का मतलब सब लोग जानते हैं ना? तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड में वही है। हाँ, यस सर। अभी मैंने डिक्शनरी मीनिंग ही डाल दिया। A paradox is an idea that is contrary to popular opinion. Something that seems contradict common sense yet it is true. तो हम लोग समझते हैं मीठा अलग है, नमकीन विपरीत है ना? मीठा है और नमकीन है। मीठा एक तरफ है, नमकीन एक तरफ है। लेकिन मीठा और नमकीन को साथ में बनाते तो क्रैक जैक बनता है। अच्छा, पहले ऐसा था कि अगर प्रोडक्ट महंगा है तो अच्छा होगा, या प्रोडक्ट को अगर अच्छा बनाना है तो महंगा होगा। आज के तारीख में ये नहीं हुआ। आज के तारीख में ये हुआ है प्रोडक्ट सस्ता भी चाहिए और प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए। जियो, ऐसे बहुत एग्जांपल है। सो यू हैव टू कंबाइन पैराडॉक्स, ये या ये। तो जैसे अभी लाइफ बैलेंस की बात हो रही थी कि वर्क और लाइफ, तो बैलेंस नहीं करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिक्स करना है। कभी कभी आप ऑफिस में बोलते हो तो बोलता है सर केक तो आ जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। तो ये पैराडॉक्स हो गया। आपको बोलना चाहिए केक भी चाहिए अभी का अभी, अच्छा भी चाहिए और अभी का भी चाहिए। तो इफ यू चैलेंज पीपल टू गेट बोथ द थिंग, दिस एंड दैट, यू विल ग्रो इन द वर्ल्ड। और पैराडॉक्स ग्रामर में है, पैराडॉक्स लैंग्वेज में है। The life is much beyond than paradox and grammar. तो पैराडॉक्स में थ्राइव करिए। और जैसे आपने देखा होगा ये बॉटल है, इसमें आदमी को छोटा बना दिया, बॉटल को बड़ा बना दिया। तो इज वन ऑफ द इनोवेशन, वन ऑफ द क्रिएटिविटी। वैसे आपने अगर बहुत पहले फ्रूटी का ऐड देखा होगा तो फ्रूटी का पैक बड़ा बनाया था और उसपे लड़की छोटी सी बनाई थी। ये आप एक
स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए. फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी. सो दिस आई हैव टेकन फ्रॉम ए बुक कॉल्ड रीइमेजिन. तो उसमें उसने 9/11 का एग्जाम्पल दिया है. 9/11 वैसे कोई अच्छा चीज नहीं है एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन आप बोलो 9/11 कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितना इफेक्टिव प्रोजेक्ट था. उसका ऑफिस किधर था, उसका सीईओ कौन था, उसका सुपरवाइजर कौन था, किसी को नहीं मालूम है. और उस जमाने में 2011 में ऑफिस के बिना हम काम करने का सोच नहीं सकते थे. आज तो फिर भी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है. उस जमाने में कोई सोच नहीं सकता था. उस समय में इन्होंने क्या किया, ऑफिस किधर, आदमी किधर, मैनेजर किधर, कुछ मालूम नहीं. लेकिन जब उन्होंने काम किया तो स्टिंग लाइक ए बी. तो हमको हमारा जो बिजनेस करना है उसको एकदम ऐसा फ्लूइड मॉडल रखना है. बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत बड़े खर्चे लेके काम नहीं करना है. So you float like a butterfly and stick like a bee. हाँ, सब लोग पूछते हैं लाइफ कैसे चल रहा है, तो बोला सेटल हो गया. बट सेटल में ग्रोथ नहीं है. बिजनेस कैसा चल रहा है, तो बोला सेट हो गया. सेट में ग्रोथ नहीं है. लव द मैस, मैस में ग्रोथ है. I am not comfortable unless I am uncomfortable. Revel in the mass because the mass has the message. अगर सब कंट्रोल में है मतलब ग्रोथ नहीं है. अगर आपको लगता है आपका सब चीज कंट्रोल में है, इसका मतलब है ग्रोथ नहीं है. आप कुछ अपने कंफर्ट जोन के बाहर काम नहीं कर रहे हो. तो जितना कमोशन, जितना कंफ्यूजन, जितना क्योस है बिजनेस में, उतना अच्छा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोचना नहीं है, काम करना है. हम लोग बहुत से नए सोचते रहते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं एनालिस पैरालिसिस. तो सोचो मत, काम शुरू करो, उसका रास्ता आपको मिल जाएगा. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, और हम घंटों लगाते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे. यहाँ पे हमारा एडवाइस है कि स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है. कुछ ट्राई करो एंड सी व्हाट हैपेंस. आज की तारीख में तो मैं बोलता हूं आप कुछ मत करो, गूगल को खोल के 1 घंटा उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करो, आपको आंसर मिल जाएगा. करने से मालूम पड़ता है. वो जो गाड़ी बंबई से निकली है पूना के लिए, उसकी 15 फुट की लाइट, 50 फुट की लाइट आपको आगे ले जाएगी. तो जितना आप काम करेंगे उतना आपको आगे आगे दिखने लगेगा. तो एक सोच होने के बाद हमको काम करना शुरू करना है. तो जैसे मैंने वो मैरिज का एग्जांपल दिया था, इफ ऑल द डिफिकल्टी वर नोन एट द आउटसाइड ऑफ ए लॉन्ग जर्नी, मोस्ट ऑफ अस वुड नेवर स्टार्ट आउट एट ऑल. तो सब गलती का, सब रास्ता, सब प्रॉब्लम का अगर सोचेंगे तो हमको रास्ता ही नहीं मिलेगा. ये मेरा फेवरेट कोट है, ग्रेट एंड ऑफ लाइफ इज नॉट नॉलेज बट एक्शन. तो मैं थोड़ा अच्छा मोटा हूं, मेरे को वजन करने का सब तरीका मालूम है, मेरे को वजन घटाने के सब फॉर्मूला मालूम है, लेकिन मेरा वजन घटा नहीं. क्यों नहीं घटा? मैंने कुछ किया नहीं. तो नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेने से होता है. लोगों को लगता है मुझे मालूम है, मालूम होने से कुछ नहीं हुआ, एक्शन लेने से होता है. और मालूम है और एक्शन नहीं लिया तो वो जबरदस्ती का बोझा है. नॉलेज विच इज नॉट यूज इज द बर्डन. लीडर्स रीडू, अगर एक कुछ काम किया सक्सेस नहीं हुआ, वापस करना है. अच्छा, किसी ने पहले कुछ बिजनेस ट्राई किया और उसका नहीं चला, किसी ने कोई बिजनेस ट्राई किया और उसका नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं चलेगा. उल्टा आपको एक स्टेपिंग स्टोन मिल गया है कि आप उसके आगे आप अच्छा कर सकते हो. अब मॉडल में क्या चेंज करना है, उसने क्या मिस्टेक किया है, उसको ठीक करना है. बहुत सारे बिजनेस जब पहले आए थे तो समय से पहले थे, शायद उसका समय आज आ गया है. जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, घर से सामान बेचने का बिजनेस पहले बहुत मुश्किल था,
क्योंकि दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आप घर में ये बनाते हो, अच्छा बनाते हो, कैसे बनाते हो। आज की तारीख में बिकॉज ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। मैंने देखा है बॉम्बे में बहुत सारे सैंडविच वाले बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते हैं और उनके पास एक मोबाइल लेते हैं जिसपे वो ऑर्डर लेते रहते हैं। तो आज की तारीख में इवन द बिजनेस विच वाज नॉट वेरी पावरफुल इन पास्ट, आज वो पावरफुल हो सकता है बिकॉज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फेसबुक अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो सीख मैं आपको अभी मतलब मैंने जो सीखा है मैं बताता हूं। मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, वो बोलते बोलते आप 10 साल निकाल देते हो। अरे मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आता है, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता है। लेकिन कोई भी चीज सीखने के लिए 7 दिन से 21 दिन काफी है। दुनिया का कोई भी काम सीखने के लिए इनिशियल लेवल पे 7 दिन और प्रोफेशनल होने को 21 दिन काफी है, बाद में आप कर लोगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो 7 दिन में आप इंग्लिश सीख सकते हो। अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है तो 7 दिन में सीख सकते हो। और अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो हर चीज करने का वीडियो अवेलेबल है। तो मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये नहीं आता है, वो छोड़ के हमको जो भी करना है वो करना चाहिए, जो भी सीखना है वो सीखना चाहिए। तो अगर इंस्टाग्राम नहीं आता है, यूट्यूब नहीं आता है, फेसबुक नहीं आता है तो आप सीखो। आपको बहुत सिखाने वाले भी मिल जाएंगे और यूट्यूब, गूगल भी अवेलेबल है। तो मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है बोलने की जगह पे बोलना है मैं करूंगा, मैं सीखूंगा और सीख के आगे बढ़ना है। तो कोई कोई चीज जैसे टेक्नोलॉजी का अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो उसका हमारे को दुनिया के जीवन के और दूसरे लाइफ में भी उसका फायदा होता है। हर क्षेत्र में हमको फायदा होता है, तो हमको सीखते रहना चाहिए। द पीपल हु सक्सीड दोज हु आर बेस्ट एट प्लान बी। मतलब एक प्लान बनाया उससे सक्सेस नहीं हुआ तो डिप्रेस नहीं होना है, आपके पास प्लान बी। मैं बोलता हूं प्लान का तो एक्सेल होना चाहिए। एक्सेल का मतलब है ए टू बी, डबल ए, डबल बी, डबल सी, फिर ट्रिपल ए, फिर 1A, फिर 2A, फिर 2B, 3C, ऐसा बढ़ते जाएगा। तो योर प्लान शुड नेवर स्टॉप टिल द टाइम यू सक्सेड। अच्छा, एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए, कभी कभी वेट भी करना चाहिए। और मैंने खुद मेरी लाइफ में देखा है बहुत सारे प्रॉब्लम जो बहुत बड़े प्रॉब्लम थे वो 4 दिन 5 दिन में ऑटोमेटिक रिजॉल्व होके डिसॉल्व हो गए, डिसॉल्व होके रिजॉल्व हो गए। तो समटाइम यू टू वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट हैपेंस। ये भी पैराडॉक्स है कि लीडरशिप एक्ट एंड लीडरशिप वेट, बट पैराडॉक्स इज द वे ऑफ लाइफ। लीडर्स आर एंग्री, ये पॉजिटिव एंग्री है, कंप्लीटली अनहेज्ड बाय द स्टेटस को। अनइज बाय मतलब मैड, यस एंग्री। वो इस बात से दुखी है कि सन वेस्ट में क्यों डूबता है। तो खाली दुखी नहीं है, वो कुछ करने को भी तैयार हैं। हम लोग दुनिया में बहुत बात से दुखी हैं लेकिन कुछ करते भी नहीं है। तो एंग्री भी रहना है, डिससेटिस्फाई भी रहना है और उसके बारे में कुछ करना है। तो जो भी चीज आपको एंगर देती है वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप कुछ करके उसका एक बिजनेस मॉडल बना सकते हो। Sir, we have 10 minutes. 10 minutes to talk ना, ठीक है। जी Q&A आफ्टरवर्ड ना। जी सर। ओके, तो लाफ। तो पीपल हु आर कंफर्टेबल विद देमसेल्फ देन ओनली कैन डू वंडर। तो इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है, आपको अपने पे प्रेम होना चाहिए, आप अपने आप में खुश होने चाहिए, जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस पे बहुत लंबा थियरी है, मैं अभी आज नहीं बात कर सकता हूं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप से खुश नहीं है तो दुनिया में कोई आपको खुश नहीं कर सकता है और आप किसी को खुश नहीं कर सकते।
लीडर्स आर ऑप्टिमिस्टिक। तो हम दोनों तरह से सोच सकते हैं, ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, और दोनों क्वेश्चन का कोई सही आंसर नहीं है, लेकिन आप जैसा सोचोगे वैसा होने लगेगा। मतलब आप बोलोगे ये काम हो जाएगा, ये काम नहीं होएगा, दोनों बात में आप राइट है, क्योंकि जो बोलोगे वो हो जाएगा। इसके लिए हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहो कि ये काम हो जाएगा। आप नहीं होगा बोलोगे तो सब दरवाजे माइंड के बंद हो जाते हैं, और आप होगा बोलोगे तो उसके रास्ते खुल जाते हैं। हमारा जो माइंड है हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से चीजें दिखता है। इनोवेशन इज नथिंग बट अ ग्रैंड डिजाइन। तो डिजाइन इज नॉट हाउ इट लुक्स, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। तो बिजनेस इज नथिंग बट ए डिजाइन। हर प्रोसेस, हर सिस्टम इज ए डिजाइन। तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानर भी है और आर्किटेक्ट भी है। यू हैव टू डिजाइन एवरीथिंग। You have to design customer experience. You have to design product experience. पहला फॉर्मूला है कीप इट सिंपल। तो एक्शन लेना है, उसके ऊपर बात हो गई है। इनोवेशन का मतलब क्या है? आपको आज के एस्टैब्लिश रूल को तोड़ना है, और अदर वर्ड में यू हैव टू चैलेंज अजम्पशन ऑफ टुडे। हमारे बिजनेस में तो ऐसा ही होता है, हमारे इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, हमारे लाइन में तो 2 नंबर में काम होता है। और मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे 2 नंबर के बिजनेस जो 100% 2 नंबर पे चलते थे, हमारे मेंटरिंग और कोचिंग के बाद आज 100% व्हाइट पे काम कर रहे हैं। तो यू हैव टू चैलेंज द अजम्पशन। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारा तो यही सिस्टम है, उसको आप चैलेंज करिए, उसको क्वेश्चन करिए। तो जनरली रिबेल का मतलब होता है जो आपके पक्ष में बात नहीं करता है। और जनरली हमने देखा होगा सोशल सेटअप में कि जो ज्यादा ऑब्जेक्शन लेता है उसको हम नेक्स्ट टाइम मीटिंग में नहीं बुलाते हैं, अरे ये बहुत खिटखिट है। लेकिन आइडिया रिबेल से ही आता है। तो अपने अंदर के रिबेल को भी खड़ा करिए, और जो भी आपके विरुद्ध बात करता है उसको दोस्त बनाइए। वहां पे आपका इनोवेशन छुपा हुआ है। आपको जैसे के साथ बैठोगे, जिसके साथ रहोगे, वैसे आप हो जाओगे। वैसा कहा है कि यू आर एवरेज ऑफ 7% यू मीट एवरी डे। तो आप अगर आप में कुछ क्वालिटी बराबर नहीं है तो इसका मतलब है जो इसको आप साथ को रोज मिल रहे हो, दे आर नॉट व्हाट यू वांट। तो आपको अपना सर्कल बदलना है। तो यू टू हैंग आउट विथ फ्रीक, जिसको बहुत ज्यादा डीप में इंटरेस्ट है, जो मैड है। तो आपका जो कलेक्शन होना चाहिए वो वियर्ड कंसल्टेंट, वियर्ड एम्प्लॉइज, वियर्ड सप्लायर, वियर्ड हॉबीज, वियर्ड कस्टमर, सब कुछ वियर्ड, विच इज नथिंग बट स्ट्रेंज एंड अनकन्वेंशनल। हम जिसके साथ रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो अपनी कंपनी चुनना बहुत जरूरी है। कुछ कंपनियों में नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, कुछ कंपनी में मजा आ जाता है। तो यू हैव टू सिलेक्ट। इस पे भी ऑल्सो वी कैन डिस्कस, बट वी डोंट हैव टाइम सो मच। वो जो प्रॉब्लम है वो बिजनेस को बिजनेस नहीं बनाइए, एक कॉज बना दीजिए, एक मूवमेंट बना दीजिए। तो मदर टेरेसा की जो ट्रस्ट है वो रोज 4 करोड़ लोगों को खाना खिलाती है, रोज 4 करोड़ लोगों को खाना खिलाती है। तो उसने क्या किया? उसने एक कॉज क्रिएट किया। तो कॉज करेंगे क्रिएट विच इज हेल्पफुल टू एवरीबडी, यू विल गेट ऑल द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इन योर फेवर। तो मेरे को पैसा कमाना है, उससे अच्छा आप ये देखिए, क्योंकि जब अपने बिजनेस का डेफिनेशन दिया तो बहुत ने लिखा प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे इनकम होना चाहिए। नहीं, आपको कोई कॉज को सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाना है। कोई दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके लोगों का भला करना है, आपका भला पक्का है। अगर देखा होगा आपने मैरिज में, पहले मैरिज में ऐसे लड़कियां ऐसे इत्र छाटती थी, मतलब छिड़काव करती थी, स्प्रे करती थी। अभी तो खैर मशीन आ गई है। तो सबसे ज्यादा इत्र किसके पड़ता था? जो खुद छाट रहा होता था। तो
You have to create a cause and give solution for that cause. Create a cause, not a business. तो देखिए जैसे लिज्जत पापड़ है, इतना बड़ा बिजनेस हो गया, उसने क्या किया, बिजनेस तो है लेकिन उसका कॉज क्या है कि सिविल हेल्प वर्किंग वुमन हु कैन नॉट अर्न. तो द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई क्रिएट, हाउ कैन आई मेक माय बिजनेस अ कॉज, अ फॉर्मूला और अ सॉल्यूशन व्हिच विल हेल्प रिजॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम. आपके अंदर के पागल को फ्री करो, स्पीड पे ध्यान दो. कोई काम करना है, अगर वो एक दिन में हो सकता है तो 1 घंटे में कैसे होता है वो देखिए, 5 मिनट में कैसे होता है वो देखिए, सेकंड में कैसे होता है वो देखिए. तो ये जो मैंने बताया था सुरेखा जी की, इफ यू थिंक सीम्स अंडर कंट्रोल यू आर नॉट गोइंग फास्ट इनफ. तो हम इस स्लाइड पे पूरा करेंगे. कीप इट सिंपल, get the best people to help you, recreate yourself, play. अब जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक मैसेज है मेरा, आपके लाइफ में जो हो रहा है, आपके बिजनेस में जो हो रहा है वो कुछ नहीं, आपके अंदर का रिफ्लेक्शन है. अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा आप बाकी जगह भी स्लो है. तो योर बिजनेस इज अ मिरर ऑफ यू. और अगर आपको आउटवर्ड चेंज करना है तो अपने आप को चेंज करना है, तो रिक्रिएट योरसेल्फ. सिचुएशन के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यू हैव टू रिक्रिएट योरसेल्फ. फिर आपने कोई गोल बना लिया, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते हो मुझे टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है, मुझे से लोगों से बात करना पसंद नहीं है. एक बार आपने गोल ले लिया, उसके लिए जो करना है वो करना है. पसंद और नापसंद का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है. तो द बेस्ट चैलेंज यू हैव इज रिक्रिएट योरसेल्फ. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, ही इज नॉट विलिंग टू चेंज. वो सोचता है जो मैं करता हूँ करते रहूं, रिजल्ट नया आवे. मैं 9 बजे उठूंगा, मैं 2 घंटा टीवी देखूंगा, मैं टाइम पास करूंगा, मैं ईमेल चैटिंग करूंगा और मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है. टू गेट समथिंग इन लाइफ यू टू क्रिएट योरसेल्फ, रिक्रिएट योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ. तो मैं तो हर गोल सेटिंग वर्कशॉप में बोलता हूँ कि गोल सेटिंग वर्कशॉप आपने कर लिया, गोल बना लिए, सब कुछ लिया, उसमें सबसे पहले लिखो कि ये गोल अचीव करने के लिए आपको अपने आप में क्या बदलाव लाना है. कोई भी गोल को आपको अगर पाना है तो उसमें सबसे बड़ा ब्लॉक आप खुद ही हैं. तो आपको अपने आप को सवाल करना है कि मुझे क्या बनना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा. अगर आप वो करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे अभी ये प्रेजेंटेशन को स्टॉप करते हैं और गैलरी व्यू भी कर देंगे. तो मैं कर लेता हूँ. चलो, तो किसी को कोई सवाल है तो हम उस पर बात कर सकते हैं. आपको बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में कोई भी सवाल है, मैं जवाब दे सकता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ. वो सॉल्यूशन सही होगा नहीं होगा बात की बात है, बट मेरा एक नजरिया देखने का आपको दे सकता हूँ. सर, एक सवाल आया है कि does the daily use of Twitter or any social media have a positive impact on the attention span for business? हाँ वो है, लेकिन उसमें क्या देखना और किधर इफेक्ट होना वो आपके हाथ में है. सो एनीथिंग विच यू डू, एक्चुअली पहले हम लोग बोलते थे वीडियो गेम खेलता है तो आदमी टाइम वेस्ट कर रहा है. लेकिन आप देखो वीडियो गेम के जैसा ही हर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम चलता है. तो बहुत पहले फेसबुक बहुत चला, मतलब जब नया नया आया तो मैं सोचा मैं फेसबुक पे जाऊं कि नहीं जाऊं. तो फेसबुक एक तो होता है टाइम पास करने के लिए, मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं, मैं एयरपोर्ट पे हूं, ये भी हो सकता है. मैंने डिसीजन लिया, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इसकी वजह से मेरा प्रमोशन ब्रांडिंग बढ़ना चाहिए. तो मैं फेसबुक पे जो भी काम करता हूँ मेरे ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए करता हूँ. तो ध्रुति जी, आप कोई भी काम करें उसके पीछे इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर है तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा. Absolutely right, sir. तो हर टेक्नोलॉजी, हर औजार, हर टूल दोनों काम कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये इंपॉर्टेंट है. चाकू लेके ऑब्जेक्टिव है अगर सब्जी काटना तो सब्जी कटेगी, और दूसरा कुछ है तो वो भी हो सकता है.
तो एनी टूल इज यूजफुल एज पर योर ऑब्जेक्टिव. Right. We have to define. हाँ, दूसरा ये है कि हमको हर चीज में ये देखना चाहिए कि मैं इसका मेरे अच्छे के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं. अच्छा, दुनिया में और एक चीज है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आई पहले खराब काम के लिए आई. इंटरनेट में पहले सब पोर्नोग्राफी चलता था. न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है पहले लोगों को वॉर के लिए आई. तो टेक्नोलॉजी बाद में अच्छे काम के लिए भी यूज होती है. आज वो एटॉमिक टेक्नोलॉजी से आपके पावर हाउस बन रहे हैं. सो एवरी टूल, एवरी क्वालिटी, एवरी आइडिया इज टू साइडेड. वो डबल धार है. आपको कौन सी धार पकड़नी है वो आपके ऊपर है. So I जैसे hope रूपल जी को ये सवाल का जवाब मिला होगा आपके इस क्वेश्चन से, जो आपने बहुत अच्छे से बताया. इट्स टू एजेड स्वॉर्ड, हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर. वो मैडम का सवाल जरा वापस लेना चाहिए. अच्छा सवाल था मैडम. वो आप सवाल बोल सकती हैं हाथ खड़ा करके. अभी जो एक सवाल था ना लास्ट में, अच्छा था बहुत. हाँ. सो दो सवाल आए हैं. एक तो निधि जी सिराना का है. निधि खुद बोले ना. हाँ, Nidhi ji, unmute yourself, please. We've sent you a request. Hello, sir. This is Nidhi Surana, and I'm the manufacturer of organic beauty products under the brand name Adhikara Organics. I have just started. Okay. And it's been around 5 to 6 months. Now you said innovation is important, right? So I just wanted to ask, how frequently should we innovate so that our business grows as we want? Very good question. First of all, creating business model, you be very innovative. Actually तो हर पार्ट में होना चाहिए innovative. सबसे पहला है कि मैं कस्टमर को substantial value किस रूप में दे रही हूँ. तो have you find out what is your substantial value? Yes, actually I have innovated like. I am asking what is the substantial value you are giving? Yes, I'm giving them organic treatment of dandruff, like organic. Organic, madam, organic सब दे रहे हैं. Organic 50 लोग दे रहे हैं. Organic treatment of dandruff is not available. Dandruff only chemical treatments are there. As far as my research. Okay, yes. Okay. Now you are doing organic product. So dandruff is only one of the product. Yes, I am coming with few more. Yes. हाँ, तो overall company का जो what problem you are solving for people? Yes, that I am going chemical free. So I am not asking for answer. You have to ask yourself, and you have to find out how can I differentiate myself with other people, and how can I create tremendous value, substantial value. Okay, but what about the innovation? Like you were asking about, means how frequently should I innovate? Like every year means like I have launched one product, right? So what do you think in how much time, means how much amount of time I should innovate that particular product? So innovation product का simple है. आपने एक product बनाया, आपने उसके thought process डाला, और then you have to take views of lot of people. Okay. Marketing expert से बात करो, लॉजिस्टिक वाले से बात करो, पैकिंग वाले से बात करो, कस्टमर से बात करो, कस्टमर के कस्टमर से बात करो, एंड डिजाइन योर प्रोडक्ट एंड उसको स्टार्ट करो. ऐसा भी नहीं है कि रोज सुबह उठ के नया इनोवेशन किया. प्रोडक्ट बनाया तो पैराडॉक्स है, इनोवेट भी करना है और स्टडी भी चलना है, दोनों है. सो यू हैव टू ग्रैब बोथ द थिंग्स, इनोवेशन एंड स्टेबिलिटी, दोनों आपको करना है. दूसरा जो इनोवेशन करने का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि जहां पे आपको खिटखिट है, जहां पे आपको टेंशन है, जहां पे आपको तकलीफ है, वहां इनोवेशन है. तो सर उनका सवाल ये भी है कि आज अगर मैंने वो सोल्यूशन दे दिया, वो एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन दे दिया, अभी should I still look for further problems in that same solution? Yeah, you can look at different problem. You can create 2 product out of 1 product. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमाइज करके अलग अलग वैल्यू बना सकते हो. आपने एक प्रोडक्ट बनाया साली, वो डेंड्रफ ठीक करता है. अब दूसरा प्रोडक्ट बनाया जो डेंड्रफ भी ठीक करता है और शाइनिंग बढ़ाता है. नाउ यू कैन
put this product at a premium price. फिर आपने तीसरा कुछ और लेके आया कि डेंड्रफ भी करता है, शाइन भी करता है, बाल को टूटने की जगह पे स्ट्रॉन्ग बनाता है. So that can be a third product. Right. Great. Excellent. दो और सवाल है. एक सुरेखा जी ने पूछा है. सुरेखा जी प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा. Yes, sir. The question is like innovation. Does it need planning your time or making an Excel sheet, as you said? If I'm launching some product, Making an Excel sheet was in a wrong context you have taken. No. I have this question. If I'm coming out with some innovative product, तो वो innovation जो होता है कि उसके लिए मैं 4 या 10 चीजें सोच के रखूं, क्या ये वर्क नहीं हुआ तो ये वर्क करूं, ये वर्क नहीं हुआ तो ये वर्क करूं, for anything to be launched. जितना सोचेंगे उतना फायदा है. Means more plans like A, B plans, what you said. नहीं, प्लान तो बात की बात है. पहला तो है जितना डीप थिंकिंग इन्वॉल्व होगा, जितना लोगों का ओपिनियन लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. अच्छा. और एक्सेल शीट तो मैंने इसलिए बोला कि एक्सेल साथ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपके पास भी होने चाहिए. अच्छा. तो एक्सेल शीट यहाँ पे मेरा जो बोलने का मतलब था कि जैसे एक्सेल में आप बहुत सारे ऑप्शन लेके आ सकते हो, वैसे आपको प्लानिंग में भी ऑप्शन लाके रखना पड़ेगा. और when you think of say 50 ऑप्शन, तो आपका 51 वाला ऑप्शन नया तैयार होगा जिसमें 50 शामिल होगा. अच्छा. तो normally what I do whenever I get a training assignment or speaking assignment, from the day one I start making points. वो जो 100 पॉइंट जमा होते हैं, जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूं तो 101 पॉइंट भी आ जाता है और वो खूबसूरत होता है. तो ज्यादा एंगल से थिंक किया हुआ चीज है, वो आपको एक अच्छा फॉर्मूला देगा, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला देगा. अच्छा. So thinking over that particular thing will go more deeper. From different angle, from different perspective. Yeah. Okay. तो मैं एक और चीज देता हूं कि आपको कंसल्टेंट बनाना है, तो मेरा कंसल्टेंट कौन है देखिए, धीरूभाई अंबानी, महात्मा गांधी और नेपोलियन हिल, वो मेरे कंसल्टेंट है. तो मैं आंख बंद करके उनको पूछता हूँ कैसे करने का, वो जवाब देते हैं. वो जवाब नहीं देते हैं, but I get a different perspective. Got your point. I will see how my mother will look at this, how my father will look at this, how my son will look at this. So you have to see from different level. Welcome Mital Salia. Very nice to see you here. Mital is known to me from long time. Yeah, she's here. She's already logged from the. Yeah, I know. She is also a wonderful innovator. Innovator. Yeah. Excellent session, sir. Those were the questions that we had. And और कोई question है? एक और है, रूपल का क्वेश्चन है ज्योति. What are the 2 main reasons why customers don't buy the products? Hello. It is why. What are the 2 main reasons why customers don't buy the products? You have to reverse it. You have to ask yourself, what should I do so that people buy the product? हाँ, हमको जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए नहीं बनाना है, हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं बनाना है. हमको जो प्रोडक्ट बनाना है हमारे कस्टमर के टारगेट सेगमेंट के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाना है. तो अगर आज का स्पीच में आपके फायदे के लिए बात करूंगा तो आप सुनने वाले हैं, और मेरी बात करूंगा तो आप नहीं सुनेंगे. तो एवरी टाइम यू हैव टू सी ये कौन यूज करेगा, ये कैसे यूज करेगा. तो आज का मेरा जो ये इनोवेशन का लेक्चर है, अगर कोई दूसरा ऑडियंस होएगा तो एग्जांपल पूरे चेंज हो जाएंगे. तो यू हैव टू मेक प्रोडक्ट बाय आस्किंग व्हाई पीपल विल बाय माय प्रोडक्ट. तो जो मैंने निधि जी को पूछा था कि आप वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है. एंड शी वाज वेरी क्लियर, मैं डैंड्रफ इससे कर रही हूँ. हो सकता है उसमें और भी कोई कर रहा है, लेकिन इनको अभी तक इतना मालूम है कि मैं कर रही हूँ. दैट इज ऑल्सो ओके. नाउ आई टू आस्क वन मोर थिंग, व्हाट वी कैन डू. ऐसा भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट महंगा होगा. तो आपने देखा होगा पहले शैम्पू 250-300 रुपए की बोतल आती थी, फिर उन्होंने क्या किया, 5 रुपए में सैशे देना चालू किया. अब सेल बढ़ गया उसका. तो कभी कभी पैकेजिंग चेंज करने से भी प्रोडक्ट लेते हैं. तो कभी जैसे अभी एग्जांपल आया कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, तो 250 रुपए की बोतल खरीदने वाले लोग कम हैं, लेकिन 5 रुपए का सैशे खरीद सकते हैं. तो ये आपको डीप में जाके देखना पड़ेगा क्यों नहीं खरीद रहा है. तो सबसे बड़ा क्यों खरीदेगा. तो एक मेरा जो फॉर्मूला है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को
सबसे बड़ा प्रॉब्लम का डेफिनेशन है कि एवरी प्रॉब्लम हैज टू हैव ए सॉल्यूशन। जब तक आप प्रॉब्लम बोल रहे मतलब वो कंप्लेंट है। तो मैं बोलता हूँ मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम है, लोग टाइम पे नहीं आते, तो मैं बोल रहा हूँ लोग टाइम पे नहीं आते, ये कंप्लेंट है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? लोग टाइम पे कैसे आए। लोग टाइम पे कैसे आए, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। लोग टाइम पे नहीं आते, उसका कोई रास्ता नहीं है। Very well said, sir. Very right, sir. तो अगर सबके क्वेश्चन खत्म हो गए तो मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूं, एंड यू आर फ्री टू गिव योर फीडबैक। आपको इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छा स्ट्राइकिंग चीज क्या लगा, उसका खाली मुझे फीडबैक दीजिए। डेफिनेटली एक दो लोग ने तो ऑलरेडी लिख दिया है सर कि उनको ये सेशन से बहुत प्रभावित हुए प्रभाव हैं। नहीं, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ये बताना है। उनको आपके साथ कुछ सेशंस लेने हैं सो दैट दे कैन फाइंड देयर सेल्व्स एंड इवॉल्व बेटर। हाँ, ओके। तो आई एम गिविंग वन ऑफर टू एवरीबडी। For anybody, we can have 1-to-1 session of 1 hour on Zoom without any cost, without any obligation. Wow. That's a very So novel and noble. Date till what date, sir? It is open आपके लिए, कोई डेट का प्रॉब्लम नहीं है। Acha, so girls all get up and do ask, take this opportunity to talk to Ajay sir and get your product more into innovative. सुरेखा जी, I will give you one feedback. जब मैं 50 लोग के सेमिनार में ये ऑफर देता हूँ ना, तो 2 भी नहीं आते हैं। सर आप यहाँ से तो मान लीजिए कि हमारे 30-35 तो आने ही वाले हैं। It is welcome because अभी at my age I want to give to society back what I have learned. डेफिनेटली सर, आपके डिटेल्स हम ग्रुप में ऐड करेंगे। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जो ये सीरीज के बारे में हर डिटेल वो मेंबर्स को दिए जा रहे हैं। सो जिन लोगों ने भी वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सुरेखा जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अगर लिंक अभी चैट बॉक्स में डाल सके, प्लीज आप उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए ताकि हम आपको वहां पे डिटेल्स दे सके और आपको अजय जी से जुड़वा सके एंड make use of this lifetime, once in a lifetime offer of such a amazing speaker, a mentor who influences not just you as an individual but influences us to be better people, and with his aspect and respect which he has for society, I think ये सब हम आगे लेके जा सकते हैं to grow within ourselves, within our homes and within our communities also. Sir, it was a wonderful session. Innovation आपने जिस हिसाब से हमें समझाया है, market research जिस हिसाब से आपने बताया है, बहुत novelty है, बहुत interesting है. It was very interactive. हमें बहुत सारी चीजें सोचने पे आपने मजबूर किया है and कुछ चीजें आपके concepts जैसे मुझे लग रहा था that you know आपने जब बोला that being messy is good, I was like how can being messy be good? आपका जब वो first sentence आया था, but आपने जब उसे explain किया कि कैसे होता है, these are pearls of words and pearls of wisdom जो हमें शायद नहीं मिल पाती थी। तो thank you so much अजय जी, आपने आपका बहुमूल्य टाइम दिया हमारे ग्रुप को, हमारे लेडीज को, एंड वो डेफिनेटली वो सेशन से भी बहुत सारे चीजें आगे लेके जाएंगी, प्लस आपका 1-to-1 सेशन से भी वो लेंगे। चैट बॉक्स में ग्रुप की लिंक दी गई है, आप लोग सभी से निवेदन है प्लीज उस पर ज्वाइन कीजिए सो दैट वी कैन गेट यू कनेक्टेड विद अजय जी फॉर दिस सेशन। एंड कोई भी इवेंट, अजय जी आप भी मानेंगे, कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता जब तक एक अच्छा स्पॉन्सर नहीं होता जो सबको लुभाता है, जो सबके मन के लिए कुछ न कुछ नया लेके आता है। मैंने मेरा नंबर लिख दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हो। जी डेफिनेटली सर। और हमारे ये सीरीज, बिजनेस ग्रूमिंग सीरीज के टाइटल स्पॉन्सर and the one and only sponsor we have for this event is Sumaya Lifestyle Private Limited. It's a limited company. It is one of our own members. We are very proud of her. Ishita is there with us today.
May I request Yash to please play a video of Sumaya Lifestyle and show us the beautiful attire they have for women. Ishita, put your hand up. Let people recognize Sumaya through you. मैं ता जिंद मेरी तेरे पिछे हारिया, मैं ता तेरे उत्तों जान बैठी वारिया, मैं ता जिंद मेरी तेरे पिछे हारिया, मैं ता तेरे उत्तों जान बैठी वारिया, मैं ता तेरे नाल सच्ची लाई यारी वे, मैनू चढ़े तेरी इश्क खुमारी वे, मेरे दिल दा इको सुपना तेनू अपनी बना के मैं तो ले जाना, चल भी गवा तारे गवा मैं अपना दिल मिलिया, चल भी गवा तारे गवा मैं अपना दिल मिलिया, चल भी गवा तारे गवा मैं अपना दिल मिलिया, चल भी गवा तारे गवा मैं अपना दिल मिलिया। तेरे नाल जीने मरने दी तैयारी है, तेरे नाम कीती जिंदगी मैं सारी है, तेरे नाल जीने मरने दी तैयारी है। Amazing. So, Sumaya is your one-stop destination for all ethnic needs, whether it is your corporate office attires that you need to wear smart salwar suits, or whether you're looking for a very pretty dress to be worn at any special occasion. We are proud that Sumaya has sponsored our event, and all the winners who are going to be announced today will be getting special prizes from Sumaya via special gift voucher, which will be coming on your email IDs. So, Ishita, we have you. Ishita, if you can please help us with the winners for the Google form that was filled, which helped us create such beautiful series as of what you're seeing. Sure, Dhruti ji. So firstly, I would like to thank Surek for giving us, Sumaya, the opportunity to be the gift sponsors of the event. And also Ajay ji, it was a very insightful session, so it was great. And for the Google Forms, we have two winners, which is Anita Jain and Falguni Mehta. Excellent. Anita ji, if we can have your video on. So we They were can put you on selected first because one. their questions, they were very precise as to what they wanted into their business or into their personal life. So we are very, very proud about Anita ji and Falguni ji for being very precise in their forms. Congratulations. Congratulations. We have your details, and we'll be definitely sending you your special prizes that are there from Sumaya Lifestyle. All right. So over to you, Surekha ji, for the... Falguni ji is there. Falguni ji is also there. Falguni ji and Anita ji, just come on screen, and congratulations. And thank you so much, Sumaya, Ishita. And now, Dhruti, we have to select lucky draw. We'll tell Ajay sir to select two. अरे मार पड़ेगी मेरे को. नहीं कोई बात नहीं सर, आप बायस नहीं रहोगे, हम लोग बायस हो जाएंगे. So अजय जी, आपको तो उससे पहले सबको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा. All the ladies who are attending the session right now. Actually किसी का वीडियो ऑन ही नहीं था. हाँ, so सब अपने वीडियोस ऑन करेंगे, because अगर आपको प्राइज मिलनी है तो वीडियो के बिना नहीं मिल पाएगी. And I request Yash to take a click shot with open videos also. Open videos and broad smiles. So Yeah. we have everybody on. And be active on the WhatsApp group, I would say. Just connect so that we can bring in more info. So अजय जी, आपके पास दो स्क्रीन है, स्क्रीन 1 एंड स्क्रीन 2. तो हर एक स्क्रीन से आप जो भी वीडियो ऑन है उसमें से आपको जैसे भी ठीक लग रहा है आप सिलेक्ट कीजिए. अरे बहुत सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा. अजय जी, आपको इजी कर देती हूँ. सुरेखा जी, मुझे और शिल्पा जी को छोड़ के आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. पर सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया तो कुछ होना चाहिए ना. मैं कुछ क्राइटेरिया नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज everybody is It's a lucky draw. It's a lucky draw.
लकी ड्रॉ, आपको Your कोई नाम choice. पसंद आ गया तो भी, वो भी। हाँ, तो किसको ये इनाम चाहिए? नाम बोलो जल्दी। सर बोलेंगे सब म्यूट पे है। किसी को नहीं चाहिए, देखो। सब हाथ ऊंचा कर So सकते this is the lesson to us. We don't ask for what we want. Exactly. We are not So we don't get what we want. लवली लवली। Lovely. तो मैं 2 इनाम देने को तैयार हूँ, किसको चाहिए वो तो बोले। सबको हाथ ऊपर चाहिए। कर। हाँ, वर्षा जी बोले। वर्षा जी को दे दो। सर मुझे, सर सर नहीं, नाम बोलो। मेरा तो नाम आपको याद है। तेरे को नहीं देंगे। तो वर्षा जी एक अच्छा है क्योंकि वेरी सीनियर मेंबर, वेरी एक्टिव मेंबर। ओके, Yeah, she's our vice chairperson also of our Yes. chapter. So one Varsha is- Baid is one. एंड आई वुड Sir, लाइक टू गिव, हाँ, सेकंड स्क्रीन और सेकंड किसको चाहिए? सर हाथ ऊंचा करने दो क्योंकि माइक अनम्यूट करने की शायद सुविधा नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मित्तल को दे देते हैं, मित्तल सारिया। Oh, great. ओके। Congratulations, Mittal and Varsha ji. मित्तल डज लॉट ऑफ थिंग ऑन गेमिंग, आई बिलीव। Yeah, exactly. Yes, sir. तो उसका भी एक सेशन करिए आप हाँ, हमारे तो 2 हो चुके हैं सर। मित्तल के साथ। Yeah, you've done one session completely on brain, means brain activity through Mittal, and we've also done online, offline also. अभी मेरे को एक सेशन लेना पड़ेगा मित्तल का। हाँ सर, लीजिए, she is very, very expert and innovative. Yeah. 2 on questions, Dhruti. Two on questions. So questions we had from Rupal ji, from yourself, and from Nidhi Sarana. So one will definitely be going to Nidhi Sarana. Congratulations, Nidhi. We would like your email ID. If you can just put that on the chat. I All definitely winners. have a number. All Yes. winners, put your name and your email ID. And for the second winner, Ajay ji, from the questions that I spoke to you, आपको कौन सा सबसे ज्यादा अरे अच्छा मैं लगा? नाम पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्वेश्चन पे दे रहा था। हाँ तो आप क्वेश्चन बता दीजिए, नाम मुझे पता है। अरे So one was on whether we should have a Excel sheet or whether we should have a plan. Second one was about how does Twitter, how can we use Twitter and other तो social आपका ही media था, for वो तो business. आपका ही था। नहीं सर, वो मेरा क्वेश्चन नहीं था। मेरे कोई हाँ, भी तो वो क्वेश्चन अच्छा था, ट्विटर वाला क्वेश्चन अच्छा था। Rupal Twitter Jain. वाला क्वेश्चन अच्छा था। तो रूपल जैन, congratulations, you are our winner. देखो ये सब बराबर ऑब्जेक्टिवली हुआ, मुझे नहीं मालूम था कौन है। Yes, sir. That is why we asked your perception that which question was best for today's tempo. बस उसमें यही ध्यान रखना है कि एवरी टूल इज यूजफुल, हाउ यू यूज इट Great. एंड Super. with what objective you do it. Exactly. Through Facebook I have enhanced my brand, और मैं काम करता हूँ, फुलफिल करता हूँ, टाइम भी देता हूँ, बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। Right. Sir, Very the true, winners, sir. please Super put your winner. email ID with your names. And sir, we would also love to know what your master classes are of. थोड़ा सा Yeah, detail yeah. दे दीजिए so that Yeah, people yeah, can yeah. benefit. I just talk to you. So that So we have a company called Masterclass Training and Consultancy. It is founded by one Mr. Ambrish Chheda ji. तो निशिता गाला शायद उनको जानती होगी, निशिता गाला. He has devised a wonderful system. I was part of it as a Jito CEO, as a trainee, and then I joined him full time as a trainer. तो मास्टर क्लास जो है आपको 4 दिन में आपके पूरे बिजनेस का स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन प्लान बना के दे सकते हैं। ये सेमिनार हम लोग जूम पे कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में 15-20 लोग तैयार है तो वी कैन कम विद अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट एंड डू इट। यू विल हैव अ 4-page प्लान फॉर योर बिजनेस, 2 page ऑफ स्ट्रैटेजी, 2 page ऑफ एक्शन प्लान, और वो ऐसा प्लान जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्लानिंग के लिए बनाती है, वो प्लान, वो टेक्निक इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। You must have seen the way simplicity we use it, and you can grow your business. Many people have grow their business 15 times, 20 times, 30 times in 5 years time. And one of the customer is Gangar Optician. oh, Wow. So when they came, they had only 3 shops. Now they have more than 85 shops. Super, wow. sir. So today they are in problem because of real estate. Otherwise they are chashme ka business doing very well.
Excellent, sir. Thank So you so much for that information, Ajay ji. if you want to do it, we can work out a program, and Ambrish ji can also participate. I will also come. Yeah. And every participant can create his 4-page business plan with all our includes value system, mission, vision, USP, brand positioning. We also say most valuable irresistible proposition. तो जो बोला था ना कि लोग हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदते हैं, तो हमारे लिए उसका एक फॉर्मूला है, create most valuable irresistible proposal for your business. Superb, sir. So we can do that. Yeah. Yes, sir. Excellent, So, amazing. friends, please join on WhatsApp. If you feel there are many more friends who really want to do this, join on the WhatsApp so that we can give on the details and have a workshop in a very short time. Thank you so much.